त्रिपुरा के धौलाई जिले के अंबासा बीएसएफ यूनिट पूर्वोत्तर का पहला कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। यूनिट के 27 जवान व उनके परिजन अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी मामले पिछले 3 दिनों में सामने आए हैं। सोमवार को सीमा सुरक्षा बल के 138वीं बटालियन के अंबासा यूनिट के और 10 जवान, 1 जवान की पत्नी तथा उसके 2 बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सोमवार को राज्य में 13 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे, जो अभी तक राज्य में सर्वाधिक हैं। इससे पहले रविवार को 12 और शनिवार को 2 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके साथ ही त्रिपुरा के अंबासा स्थित बीएसएफ यूनिट में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। यहां बता दें कि राज्य में 6 अप्रैल को पहला और 16 अप्रैल को दूसरा कोरोना का मामला सामने आया था। राज्य में अब तक 29 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पर जा चुके हैं। वहीं 27 अभी भी सक्रिय हैं। यहाँ दर्शकों को बता दें कि त्रिपुरा देश के उन राज्यों में शामिल था जिसने कोरोना को मात दे दी थी और राज्य को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। लेकिन पिछले 3 दिनों में 27 मामलों ने न सिर्फ राज्य को फिर से कोरोना प्रभावित राज्य बना दिया है, बल्कि एक ही स्थान के 27 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है। धौलाई जिला प्रशासन ने अंबासा यूनिट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर यूनिट में किसी के भी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर रविवार को पाए गए कोरोना संक्रमितों को अगरतला के जीबी पंत अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने लोगों से आतंकित न होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी व्यवस्था कर रही है, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। তাতে আমবাসা বিএসএফ ক্যাম্পের ভেতরে যারা রয়েছেন, যাদের স্যাম্পল নিয়ে টেস্টিং ক্রমাগত রাজ্য সরকার করছে, 102টি স্যাম্পলের মধ্যে 13টি করোনা পজিটিভ আবার নতুন করে পাওয়া গেছে। তার মানে আগে 14টি, এখন 13, মানে 27টি করোনা পজিটিভ और 2 জন ডিসচার্জ হয়ে বাড়িতে চলে গেছে। বন্ধুরা, তার জন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং আমরা মোকাবেলা করব। তার মধ্যে একটা পজিটিভ দিক রয়েছে যে সেই কনস্টেবল বিএসএফ এর যে জওয়ান ছিলেন, গন্ডাচারা হসপিটালও অ্যাডমিট ছিলেন এবং কুলাই হসপিটালে অ্যাডমিট ছিলেন। তো গন্ডাচারা যে বেস সেখানেও গিয়েছিলেন, সেখানে সমস্ত যে স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে সবগুলো নেগেটিভ এসছে এবং যারা মেডিকেল স্টাফ রয়েছেন তাদেরও 76টি 76 স্যাম্পলের মধ্যে 60 নেগেটিভ চলে এসছে, বাকি 16 তার প্রসেস গোয়িং অন রয়েছে। আমি আশা করি সেগুলো নেগেটিভই আসবে। তাতে একটা বিষয় নিশ্চিত হয়ে গেছে যে কোভিড-19 যে পজিটিভ কেসগুলো সেগুলো আমবাসার যে বেস্ট বিএসএফ ক্যাম্প তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। আমরা এই বিএসএফ ক্যাম্পে যারা যারা রয়েছেন সবার স্যাম্পল নেব এবং স্যাম্পল নিয়ে কম সময়ের মধ্যে যাতে রিপোর্ট রাজ্যবাসীর সামনে চলে আসে এবং তাদেরকে সুস্থ করে তোলা। আর আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরাশীর মায়ের এই পুণ্যভূমিতে আমরা সক্ষম হব সবাইকে সুস্থ করে তুলব। और वहीं मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कहा कि देश भर के साथ राज्य में भी लॉकडाउन के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इस दौरान शाम 7 से सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है। जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের নিয়ম নীতিগুলি মেনে চলতে হবে। প্যানিক হওয়ার দরকার নেই, হয়রান হওয়ার দরকার নেই। শুধু দরকার একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে সাবধানতা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। और केंद्र এবং রাজ্য সরকার যেই
দিশা নির্দেশিকা দিয়েছে সেগুলো পালন করা। আজকে থেকে রাজ্য সরকার সন্ধে 7টা থেকে ও সকাল 5টা পর্যন্ত সমস্ত ত্রিপুরার লকডাউন পিরিয়ডে কারফিউ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগেই কনসার্ন ডিএমরা 144-এর সঙ্গে সঙ্গে শুধু অত্যাবশ্যকীয় তো এসেন্সিয়াল সার্ভিস সেগুলোর পারমিশন দিয়ে একটা দিশা নির্দেশিকা লাগু করেছে। আমি আজকে ঘোষণা করছি যে সেই নির্দেশিকা তো থাকবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ত্রিপুরায় সন্ধ্যা 7টা থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে। আর আইন অনুসারে প্রশাসন তার মধ্যে শক্তিশালী কারবাই করবে। আজকে আরেকটু দিশা নির্দেশিকা রাজ্য সরকার লাগু করেছে, সেটা হচ্ছে যে দোকান এবং সেই দোকানের যে দোকানি রয়েছেন, ড্রাইভার, পেট্রোল পাম্পে কার্যরত কর্মীরা, রিক্সা চালক, কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটিতে যারাই থাকবেন তাদেরকে কম্পালসারি মাস্ক পরতে হবে। সে জলগামছা হোক, সে বানানো মাস্ক হোক, সে কোনো নিট অ্যান্ড ক্লিন সাদা কাপড় হোক, আপনার মুখ ঢেকে বেরোতে হবে। আর না হলে প্রথম ফাইন 100 টাকা, আর তারপর সেকেন্ড হলে 200 টাকা। আর দেন যে এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্টের নিয়ম কানুনগুলো রয়েছে সেই অনুসারে আপনার উপরে কেস নেওয়া হবে। আমি আজকে লক্ষ্য করেছি আগরতলা বিভিন্ন জায়গাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা হচ্ছে না। মনে হয় যেন মনের আনন্দে সবাই বেরিয়ে গেছে। বন্ধুরা, এখনো কঠিন দিন শেষ হয়নি। আমি বারবার অনুরোধ করছি, আপনাদেরকে নিবেদন করছি, আপনাদের প্রতি প্রার্থনা করছি যে সাবধানে থাকুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন, বর্ডার কারফিউ পালন করুন। এগুলো আমাদের স্বভাবের অঙ্গ হয়ে যেতে হবে। এর বাইরে গিয়ে कोरोना के पराजित करा संभव नहीं बंधुरा। और यहाँ दर्शकों को बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के अब तक 67 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें दिल्ली में 41 मामले शामिल हैं। दिल्ली में तैनात 126वीं बटालियन के 41 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के मयूर विहार स्थित पूरे बटालियन को सील कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम हमारे संवाददाता सुदीप नाथ से जुटे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुदीप, जानना चाहेंगे फिलहाल ये जो 13 लोग हैं और 1-2 बच्चे भी शामिल हैं, क्या इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है? उन लोगों को अलग करके जो उन लोगों का कैंप है, कैंप के अंदर ही रखा गया है। और स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि पहले जो 12 केसेस आया था उन लोगों को डिसीजन लेके बाद में कल देर रात अगरतला लाया गया, अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। तो ये भी प्लान करके बाद में लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक जरूरी विषय है कि इसमें कितना बेड लगा हुआ है कोरोना के लिए। अगरतला मेडिकल कॉलेज में कितना बेड नहीं होने से फिर और एक अगरतला में हॉस्पिटल है आईजीएम, वहाँ भी एक कोरोना यूनिट लगाया गया, वहाँ लाया जा सकता है। तो फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट ये विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उन लोगों को कहाँ रखा जाए, और बाद में ये जब डिसीजन होगा, डिसीजन होने के बाद ही उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। ये चांसेस बहुत ज्यादा है उन लोगों को अगरतला लाया जाएगा, क्योंकि अगरतला की जो अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल है वो कोरोना के लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट है, उसके बाद ही बाकी सब है। तो इस जगह में भी लाया जा सकता है।
फिलहाल इसका डिसीजन नहीं हुआ है। डिसीजन होने से हम दर्शकों को भी ये बात बता देंगे। जी सुदीप, जानना चाहेंगे ये जो 2 बच्चे शामिल हैं, जो 2 बच्चों में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इन बच्चों की उम्र क्या होगी? देखिए, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया। खासतौर पे बच्चे से एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन से इसका नाम, उम्र, पता ये सब बताया नहीं जाता है। सिर्फ ये बताया गया कि 2 बच्चे हैं। इससे ज्यादा जानकारी मीडिया के पास दिया नहीं गया, इसलिए कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन की तहत ये नहीं बताया गया। जी सुदीप, जैसा कि बताया जा रहा है कि अम्बासा में कोरोना के 14 नए मामले, रविवार को 14 नए मामले सामने आने के बाद 3 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में भी तब्दील कर दिया गया था। इनमें बीएसएफ का 138वां बटालियन का हेडक्वार्टर भी शामिल है और 2 आउटपोस्ट भी शामिल है। इस बारे में क्या जानकारी आई है? जी हाँ, ये ठीक ही है। सिर्फ बीएसएफ का जो आउटपोस्ट और जो बीएसएफ हेडक्वार्टर ये नहीं है, इसका रेडियस में जो 3 किलोमीटर सर्कल है उस जगह को भी कंसाइनमेंट कर दिया गया। और इसमें से रैंडम सैंपल भी कलेक्ट किया जा रहा है लोगों के, जो कॉमन सिविलियंस है उनका, क्योंकि उनमें भी क्या कोरोना इन्फेक्शन हुआ है ये जानने के लिए। ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोग तो फैमिली के साथ रह रहा है, तो जरूर उन लोग बाहर दुकान या कुछ सामान वामान लेने के लिए बाहर आएंगे। लोग कॉमन पीपल के साथ कितना कांटेक्ट में आए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और जितनी जल्दी हो सके ये निश्चित होना है कि कॉमन पीपल जो सिविलियंस है इसमें ये कोरोना फैल गया कि नहीं फैल गया। इसलिए कल रात भर मेडिकल टीम ने उस तीनों जगह पे जाया और सैंपल भी कलेक्ट किया है, और बीएसएफ से भी बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहा है उन लोग कहाँ गया है और किस किस के संपर्क में आए हैं। ये जानने से ये निश्चित हो सकता है कि ये कम्युनिटी में कितना फैला है कि नहीं फैला है। जी दुलमनी जी सुदीप, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि उस तीनों इलाकों में क्या आम लोगों के बीच रैंडम टेस्ट की शुरुआत की जा सकती है? जी, ये तो बहुत जरूरी है रैंडम सैंपल, क्योंकि वो जो बीएसएफ जो जवान से उन लोग फैमिली के साथ रहते हैं और ड्यूटी जब नहीं होते उन लोग बाहर भी आते हैं सामान वामान लेने के लिए। और बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि सिविलियन लोगों के साथ भी उन लोग परिचय करने से बातचीत करते रहते। सब ऐसे दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो उन लोग जरूर ये कॉमन पीपल के साथ कांटेक्ट में आया है। ये कहाँ गया है, किस किस जगह में गया है, बहुत हम जानने के लिए मेडिकल टीम काम कर रहा है। कल रात भर काम किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, हमसे जुड़ने के लिए और वहाँ की तमाम जानकारियाँ हम तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि धलाई ज़िले में लगातार इस तरह से 27 मामले सामने आने के बाद इलाके के 138वें बटालियन के हेडक्वार्टर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही इसके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इसके अलावा गंधाचारा और करीना बॉर्डर आउटपोस्ट को भी कंटेनमेंट जोन में के तौर पर चिन्हित किया गया है।